Welcome students, I am Sanjeev Ganjir and I heartily welcome to all on my YouTube channel, and that is Conceptual Engineering with Sanjeev Ganjir. So here on your screen we have a problem of orthographic sectional views. Okay, so this is your problem and this is your direction X. Okay, so without wasting of your time, I just draw it within 15 minutes. So if you have a bright tricks or bright idea, or I can say that certain kind of knowledge related to the front view, top view or side view regarding the projection methods, either first angle projection method or the third angle projection method, then you are able to make or create a diagram, to different diagram on their requisite position. So here we have a problem, and which we will discuss here. So this is the direction of the front view. Okay, so जब हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, याद रखेंगे सामने से, फ्रंट से इन द सेंस, सो आपको फ्रंट से हमेशा लेंथ एंड हाइट जो है दिखाई देती है. सो व्हाट इज अबाउट द लेंथ? सो क्लियरली इट इज 70 फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, बट फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट the extra there is some kind of extension, and this is looks like a elliptical section, or you can say this is the circular shape, semicircular shape. So what is the distance? So clearly it is seen that the 30 mm from this center. So for this side it is about 70 plus 30 right now for this portion. So clearly we need to find this dimension, because this is totally counted within the 17 mm. Okay, so this is your 15 mm, and right now what about this? So clearly you see this is the 50 mm, so minus 15, that is 35 from this end to this end. Okay, so adding 35 extra, so it is equal to 135 mm. It is the length. Now what is about the height? So clearly the height is this one. So clearly from this point to this point, so 15 and this is your 65. Clearly 15 initial and 65 is the maximum. So it is 65 plus 15, that is equal to 18. Okay, right now the width portion is, for if we looking the object from the top, then we have a dimension like length and width. So length is exactly same, that is 135, and now what is about the width? So it is, you clearly seen it is 60 mm. Okay, it is 60 mm. So it is your 16 mm. Now we look for this one. This is your left hand side view, and if we are using the first angle projection method, then it should be drawn to the right of the front view. Okay, so using first angle projection method, so here what is the dimension for this side? So this is a width and a height. So width is again same 60, and now what is about the height? So height is exactly as a front height, that is 80 mm. So right now we just quickly start to draw this. Okay, and draw a 3 separate line which are mutually parallel to each other and about a distance of 1 centimeter. I think you already knows about this, so I am just taking as my consideration of 1 centimeter. Now we are looking for the upward side. So again this one, now this one. Okay, so this is the actual we are separating all the views here. Now firstly we need to tick the required position for the current for the requisite व्यूज. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फ्रंट व्यू है वो राइट साइड में है. सो इट इज नथिंग अ मैटर, इट इज ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड, एंड द साइड व्यू विच आर लेफ्ट हैंड साइड व्यू, it is drawn to the right hand side. Okay, so side view is drawn to the right side, so that is a side view, right hand side view. Now from this point, it is
front view, and now below to it, it is a top view. So what is the actual length, height and width? So what is in front view? We have a length and height, and it is about 135 mm and it is 80. So now we draw to this. So starting from this point, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और देखिए बारीकी से देखते जाएंगे, है ना, ये दिखेगा कैसे। तो सबसे पहले हम आपको जो बेसिक जो दिखाई दे रही है ये वाला लाइन देखिए, ये वाला ड्रॉ कर लेंगे 70 और इस साइड का फिर इस साइड का, तो टोटल 135 है। हम लोग मार्क कर लेते हैं पहले, ये देखिए फर्स्टली वी ड्रॉ अ बॉक्स ऑफ 135 mm into 80 mm like this. Okay, again from this side, or looking 135 mm from this side, this one. So it is a box. Okay, now starting firstly we put firstly we need to mark this dimension and this dimension and this dimension. So from this point it is 35, then 70, then 30. Okay, so let's start from this end. Okay, so right now firstly we draw from this end, remember 30 mm, then 70 mm. So this one is your 30 mm. Now 1 2 3 4 5 6 7 and remaining is 35 mm. Clearly it is clear. Okay, so this is the point. Now the initial height from this portion, clearly, so it is nothing but from this point, starting from this point like this, we draw 70 mm line like this. It is in dark one. Okay, it is in dark one, remember, HB pencil, but still it is throughout all whole the length, ये पूरी तक जाएगी, लास्ट तक जाएगी, बिकॉज हमको जो ये सर्कल जो दिखाई देगा वो ऊपर से दिखाई देगा, नीचे से नहीं, तो ये आपको पैरेलल दिखाई देगा टोटल। सो एक काम करेंगे, चलिए यहाँ तक आप लोग टोटल ले जाएंगे इसको, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और इनिशियल हाइट आपको क्लियरली दिख रही थी, कितनी थी, 15, देख लीजिए आप लोग, ये 15 क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। तो चलिए अब एक काम करते हैं, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ से हमको वर्टिकल हाइट लेनी है, तो ये कितना जाएगा ये चलिए देख लेंगे। तो अगर इस पॉइंट से करूँ मैं, ये देखिए 15 mm छोड़ के, तो एक काम करते हैं अपन, ये 70 तो ओके है, यहाँ से मैं 15 बैक ले लेता हूँ, एक सेकंड पहले, 35 तो हो ही गया है अपना। सो इस 35 से, सॉरी, यहाँ से सीधा सीधा हम लोग हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो हाइट है वो दिख रहा है आप लोगों को 65, ये देखिए टोटल जो हाइट है यहाँ पर जो जाएगी वो 65 जाएगी, और साथ में 80 तो है ही, 15 तो है ही। तो एक काम करते हैं, चलिए यहाँ से पूरा पूरा ले जाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, है ना, और कहाँ तक जाएगा, ये देखिए ये जो नीचे दिख रहा है आप लोगों को लाइन यहाँ तक, तो ये कितना है काउंट कर लीजिए, दिस इज योर 30, दिस इज योर 15, दिस इज योर 15 अगेन। सो जो ये आउटर वाला जो आपका जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 30, 15 और 15, 30, 45 और 60 हो जाएगा। सो सेंटर से हाफ कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए, 30 हो जाएगा। तो 30 हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद ये बीच के लिए कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, 15, ये देखिए, तो ये दो लाइन जाएगी, देखिए ये वाला, ये और ये जेड शेप में दिखाई देगा, जेड शेप, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा जेड शेप। तो चलिए यहां से हम लोग, ठीक है, ऊपर से छोड़ेंगे, कितना है टोटल 60 है, तो हम लोग 30 छोड़ेंगे, याद रखेंगे 30। तो ऊपर से देख लीजिए, इसी लाइन को आप लोग टिक करके 30, तो यहां तक ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, और इसको इधर ले जाएंगे बिकॉज जेड शेप है, ये देखिए ये। अब मैंने नीचे वाला बनाया है, ऊपर वाला तक हाइट कितना देखो 30 है, तो कितना जाएगा 15, है ना, टोटल तो ये होगा ही जरूर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए, ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब एक सेकंड, मैं अगर इस लाइन की बात करूं, ये देखिए ये टोटल जाएगा 50, तो मैं यहां से 50 mm कर लेता हूं सीधा, ये देखिए 50 यहां से हमने कर लिया है।
ये देखिए, ठीक है। चलिए फिर ये भी हो गया। अब ये नीचे जाएगा तो ऊपर से देख लीजिए क्लियरली 65 आया हुआ है, तो इसको हम 65 करेंगे तो 15 छूटेगा, ऑलरेडी पैरेलल होना चाहिए लाइन। तो ये 65, ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब ये देखो यहाँ पर आ गया, फिर ये लास्ट तक जाएगा टोटल, इसको पूरा टोटल लास्ट तक ले जाओ। ये देखिए इस तरीके से ये टोटल लास्ट तक जाएगी, है ना। और इसको आप लोग डार्क कर देंगे। तो ये नीचे का हो चुका है। अब यहाँ की बारी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था, एक तो आपको दिख रहा है नीचे वाला, ठीक है, क्लियर। और ये बीच वाला पोर्शन भी है कि नहीं है, वहाँ पर है। तो ये कितना है मैंने बताया था, देखिए 30 है, तो आधा कितना होगा 15। यहाँ से यहाँ कितना होगा 15 होगा, यहाँ से 15, ये 15, तो ये भी 15 ही होगा। टोटल 30 है तो 15 कर लेंगे यहाँ से। देखिए 30 का आधा ये 15 हो जाएगा। और 15 ये देखिए ये जो लंबाई है ये वाली तो पूरा गई है, तो इसको पूरा बनाना पड़ेगा। और ये वाला कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया हुआ है, इसीलिए यहाँ तक बनाए। चलिए इसको पूरा बनाओ आप लोग ऐसे पैरेलल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बन चुका है। अब यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही होगी, देखिए सेंटर से यहाँ से एक लाइन यहाँ पर ऐसे मिला हुआ है, तो हमको पता नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से सीधा एक लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि थिकनेस जो है 10 है वो दिखाई नहीं देगी इस साइड से, वो सीधा सामने से फ्रंट से सॉरी साइड से दिखाई देगी, सामने से नहीं। तो ये हो गया एक कंडीशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो मैं सेंटर था उसको टिक कर देता हूँ, एक सेकंड देख लीजिए। जो सेंटर था ना 70 के बाद, इसको आप टिक कर देंगे यहाँ से। ये देखिए ये 70, ये आपका सेंटर लाइन था, तो इसको आप सेंटर भी बना सकते हैं ऐसे करके। ये देखिए ये हो चुका है। तो लगभग आपका फ्रंट व्यू जो है खत्म है ना। अब रही बात टॉप व्यू की। तो चलिए टॉप व्यू में क्या क्या दिखाई देगा आपको बताओ। एक्स्ट्रा पोर्शन को मिटाना है आपको, है ना, ये नहीं रहेगा। ये दोनों है ना, जो चीज पर जो मैंने ये डार्क कलर जो कलर यूज किया वही रहेगा। ये देखिए ये इस तरीके से, ठीक है। सबको मिटाना है और ये बनाना है आपको। तो ये आपका जो है फ्रंट व्यू क्लियर। अब चलिए मैं टॉप व्यू के बारे में बताता हूँ। तो देखते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में भी सेम तो होगा ही, बताइए। लेंथ मिलेगी और विड्थ मिलेगा। तो लेंथ तो सेम है 135 और विड्थ आपको बता चुका था, ये देखिए 60 दिख रहा है, 60, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे, ये आपका पॉइंट पहले बॉक्स बनाएंगे फिर से 135 और 60 का। तो ये हो गया, ये देखिए 135 और 60, इसी को नीचे कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज सो सिंपल फॉर अंडरस्टैंडिंग और क्रिएशन। ओके 1 सेकंड, दिस इज योर 60, 1 2 3 4 5 6, this is your 60. Now this equation, okay, so this is a box for the top view. Now what you clearly seen from the right side. So देखिए आप इस पॉइंट पे क्या देखेंगे, देखो ये डायरेक्शन 15 mm, ये 15 और ये 30, ये पूरा देखोगे इस साइड, है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो सिंपल सा, ये जहां जहां तक गया हुआ है वहां तक मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए ऊपर से जब देखेंगे तो ये लाइन आपको क्लियर दिखेगी। देखिए लास्ट वाला ये देखिए तो कितना है, टोटल 50 है, ये 50 वाला है ना। तो इसको पूरा दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए इसको पकड़े अपन, ये यहाँ से इसको पूरा खींच लो। अब ये वाला ये देखिए ये कहाँ तक गया है, इधर से 15 छूटा है, 15 छूटा हुआ छोड़ना पड़ेगा। तो बट ये जो है देखिए ये इसको मुझे डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा, डॉट 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 करके लास्ट तक ले जाना पड़ेगा। इसलिए इसको डॉटेड लाइन बनाएंगे क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा, इट इज नॉट क्लियरली सीन फ्रॉम दी टॉप व्यू, सो वी नीड टू ड्रॉ इट एज अ हिडन लाइन लाइक दिस। ओके, उसके बाद आप देखेंगे क्या, यहां पर देखिए अलॉट ऑफ आपको क्या दिखाई दे रही होगी, ये 15 बनाना ही पड़ेगा। इस टोटल 50 लंबाई तक ये भी 50 बनाना पड़ेगा आपको। तो चलिए देखिए कहां कहां तक जाएगा। तो ये पहले लास्ट तक ले जाता हूं, तो कितना मार्क करना पड़ेगा 15। तो चलिए ये आपका दिस वन इज योर 15 mm ना। उसके बाद 30 छूटा हुआ है तो 15 और ये 45, उसके बाद ये बचा वाला भी जाएगा। तो चलिए इसको पूरा ले जाना है आपको। तो ये पैरेलल फिक्स करोगे और ये पूरा यहां तक जाएगा, हो गया। उसके बाद सेम ये नीचे वाला 15 भी जाएगा, ये देखिए ये भी चला गया। अब बीच का जो है ये देखिए ये तो आपका बचा ही है, वो है, ठीक है। अब चलिए इसको भी छोड़ देता हूं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं, देखिए ये जो लाइन है ये यहां से एक लास्ट तक गई हुई है, तो इसको हमको लास्ट तक ले जाना है। ये चलिए उसके बाद आप देखते हैं 70 जो दिख रहा है, 70 के बाद हमको एक सर्कल बनाना पड़ेगा और उसमें ये जो 20 का गैप है उसको छुड़वाना पड़ेगा। कैसे, ये देखते हैं। तो ये देखिए 70 वाला जो लाइन है ये सीधा करोगे आप, पहले तो ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है। और इधर का हाफ ले लो, तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा,
30, तो ये आपका हो जाएगा, अब देखिए एक सेकंड, दिस वन इज योर 30, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टिक कर देंगे, ये देखिए पतला सा ले जाओ ये, तो जहां पर कटा क्रॉस किया ये आपका सेंटर है। अब यहां से आपको सर्कल बनाना है, देखिए कितने का दिया हुआ है, ये देखिए 30 का दिया हुआ है, 20 छोड़ना पड़ेगा आपको। तो क्या करोगे, ये जो दिख रहा है यहाँ से 20 आप लोग 20 है तो 10 छोड़ना पड़ेगा, तो 10 इधर और 10 नीचे ऐसे छोड़ना पड़ेगा। अब चलिए ये आपका सर्कल यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से देखिए है ना, यहाँ तक लेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। अब क्या किए है ना, मैंने सेंटर इसको मान दिया था, तो ये आपका सेंटर और ये आपकी दूरी, ये देखिए 20 तक जाएगा, क्लियर। यहाँ से भी करोगे तो ये भी 20 तक जाएगा, ये देखिए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से होने वाला है। तो ये आपका जो है लगभग थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखिए ये ऐसे जाएगा ये 20 तक, ये वाला भी जाएगा इस तरीके से, देखिए 20 तक। ओके, अब कैसे दिख रहा है आपका डायग्राम, देखिए सीधा स्ट्रेट और यहाँ पर छोटा सा क्या दिख रहा है, सर्कल, हाफ सर्कल दिख रहा है। तो हाफ सर्कल कितना होगा, 10 का होगा, क्योंकि 20 है तो 10 और 10, ठीक है। चलिए देख लेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये इसी को पीछे कर लो, ये देखो ऐसे, ये वैसे ये, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, कोई भी सा देख लो, इधर वाला था एक्चुअल में लाइन, आप लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। छोटा डायमेंशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है ना, एक सेकंड, वो ऐसे बनाना है आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है इस तरीके से दिखाई देगा, ये देखिए, ठीक है। बाकी को आपको सॉलिड बना लो, कंप्लीट कर लो डायग्राम को, तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा अब, ठीक है। छोटी मोटी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ये इस तरीके से ये आपका बन जाएगा, ये आपका डॉटेड लाइन रहेगा, ठीक है, ये सॉलिड लाइन रहेगा। अब ये भी सॉलिड रहेगा, 2 ठो, ये और ये भी रहेगा, ठीक है। अब पीछे वाला पोर्शन जो है देखिए, ये भी हिडन लाइन आएगा, तो कितना, अच्छा वो हिडन लाइन है, यहाँ पर देखिए 10 दिख रहा है आपको ऊपर से, लेकिन है क्या नहीं, तो बीचों बीच रहेगा, तो कितना करोगे उसी को 5 and 5, ये देखो 10 दिख रहा है आपको, तो 10 एक्चुअल में सीधा है, तो ये देखिए यहाँ से 5 इस साइड और 5 इस साइड, तो यहीं से सेंटर दिख रहा होगा आपको। चलिए 5 5 कर देंगे, ये और ये, ठीक है। और इसको आपको डॉटेड लाइन बनाना है, बिकॉज ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए डॉट 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 करके यहाँ पर लिख देंगे, इस वाले भी आ जाओ, डॉट 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 डॉट, ये तो ये आपका जो है टॉप व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए साइड व्यू की बारी है, तो ये देखिए साइड व्यू से आप यहाँ से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो लंबाई होगी है ना, तो वो कितना दिखाई देगा बताओ, सॉरी विड्थ कितना दिखाई देगा, 60 mm, तो ये 60 mm पहले बना लो आप, ये देखिए इस तरीके से 60, और हाइट बताया था इसी के बराबर जाएगा, तो इसको आप पीछे पुश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए जैसे, और इसको पूरा ड्रॉ कर लेंगे, ये पैरेलल लाइन इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर होगा ड्रॉ। अब साइड से आप खड़े हो गए तो ये आपको सेमी सर्कुलर दिखाई देगा, याद रखेंगे, देखिए क्योंकि ये सर्कल है, यहाँ पर खड़े हो गए तो 2 ठो दिखेगा, 30 का और एक, मतलब एक 15 का लोगे रेडियस, ये देखिए, और एक टोटल के लिए 30 का लोगे, क्योंकि 15 + 15 30 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करोगे, आपको दिख ही रहा है यहाँ, तो इसी को आप एक्सटेंड कर दो और यहीं तक आएगा, देखिए सीधा रखना है ऐसे आप लोग, ये देखिए जब इसको ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, इसको भी आ जाओ, ये देखिए, तो ये ड्रॉ कर लिए, तो क्या होगा, इसका सेंटर ले लेंगे पहले, तो सेंटर हो जाएगा 60 है, मतलब 30 हो जाएगा, यहाँ से भी देख लो करके, देखिए थोड़ा मोड़ा भी चेंज होगा तो दिक्कत आता है, ये 30, तो ये आपका सेंटर। अब क्या होगा, ये आपका हो गया सेंटर। राइट नाउ वी यूज
वी ड्रॉ दी बोथ दिस हॉलो शेप, हॉलो सर्कुलर शेप। तो एक में हम लोग ये देखिए यहां से टोटल है, टोटल लेना पड़ेगा, ये देखिए इस तरीके से ये पूरा जाएगा, अच्छे से बनाएंगे है ना, कोई डाउट नहीं होगा। और एक होगा 15 का, तो 15 का आप लोग देख लें, 30 है तो 15, ये मैं 15 ले लेता हूँ, ये इस तरीके से ये चला जाएगा। तो चलिए ये आपका हो गया, ये यहीं तक जाएगा, ये देखिए ऐसे, ये इस तरीके से दिखाई दिया। चलिए इसको मैं डार्क कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसको पकड़ेंगे और ये एक, और ये आपका दूसरा, अच्छे से बनाएंगे सभी लोग, बहुत ही सिंपल सा, ये देखिए इस तरीके से को इसको बनाना है, ठीक है। अब बाकी तो ये देखो आप लोग, यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है तो पतली लाइन चला लेना है आप लोग को, बट ये और ये तो डार्क दिख रहा है, इसको डार्क करेंगे। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका डार्क, बाकी लाइट रहने दो। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या दिखाई देगा, ये टोटल जो है 60 की हाइट दिखाई दे रही है, ओके। अब दूसरा पोर्शन, दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ऐसा है कि जो अब हम नीचे ड्रॉ करेंगे, तो एक बार बताइए 15 mm जो है आपको दिख रही है, ये डॉटेड आएगा साइड से क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, देखो यहां तक लाते हैं ना, उसके बाद इस टोटल विड्थ तक इसको डॉटेड बनाओगे, देखिए इसके पैरेलल इस लाइन के। तो ये कौन सी लाइन थी, विड्थ, तो इस विड्थ लाइन की क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी, और क्या बनेगी, डॉटेड बनेगी, याद रखेंगे। तो ये इसको ऐसे करेंगे, ये देखो सभी लोग देख ले, और इसको क्या बनाना है आप लोग को, डॉटेड लाइन बनाना है, यहां से ये डॉट 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 ये चलते जाएगा, ये देखिए ये डॉट हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, बाकी को आपको पूरा लाइन ले जाना है, कैसे, ये देखिए इसको सीधा खींचोगे कि नहीं, ये एक, और ये वाला भी ड्रॉ करना है आपको सीधा, ये 2, और ये बेस तो है ही क्लियर, ये 3। अब दूसरी बात, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पट्टी दिख रही होगी यहाँ पर आपको, देखो तो ये सीधा दिखेगा, एक्चुअल में से बीचों बीच है, यहाँ से हमको क्लियर पता नहीं चल रहा है, बट एक्चुअल में ही बीचों बीच जाएगा। तो 10 है, जो अभी मैंने पीछे ये देखो हिडन लाइन बनाया था यही वाला, तो कितना हो जाएगा वो 10 है ना। तो आपको फिर 5 पाइप लेना है दोनों साइड से, तो कहां से जाएगा, ये नीचे से जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए टोटल ऊपर से नीचे तक, तो ये काम करेंगे, ये जो सेंटर आपको दिख रहा होगा ये वाला देखिए, ये यहाँ पर टिक करना, और 5 दोनों साइड लेना है आपको, क्योंकि 10 है। तो ये देखिए यहां से और यहां से ऐसे ले लेंगे, और इसको पहले तो आप ड्रॉ कर लेंगे पूरा, ये देखिए ये ठीक है, हो गया ड्रॉ। और ये लाइन तो मैंने डॉटेड बना चुका है पहले से, ये देखिए ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया, और क्या बाकी इसमें, हाँ एक चीज और चीज, ये देखिए ये पीछे का जो 20 था, ये भी इसको लाना पड़ेगा, तो सामने लाओ सीधा बीचों बीच, ये देखो ये भी लाएगा बीचों बीच, तो 20 है, तो इस 60 के इस साइड होगा 10 और उस साइड होगा 10, और होगा डॉटेड लाइन, ठीक है, वो होगा डॉटेड लाइन। तो चलिए ये तो आपका सेंटर था, रुको एक सेकंड, सेंटर को मैं पहले बना देता हूं। ये सेंटर लाइन आपका, अब यहां से 10 लेना, ये देखिए 10, ये 20 हो जाएगा ये। अब इसको क्या करना है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, 1 2 3, ये डॉट यहाँ पर भी हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये देखिए। सो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको बनानी है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और लास्ट ऑप्शन इसका डायमेंशनिंग कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। चलिए पहले सेंटर लाइन भी बना देता हूँ अच्छे से, 7:1 का गैप होता है, सेंटर लाइन आप बना देंगे अच्छे से, ये ठीक है। और ये तो सेंटर था ही, ये देखिए इस तरीके से। अब डायमेंशन की जब बात करें तो बहुत ही सिंपल सा डायमेंशन रहने वाला है ना। कैसे सिंपल सा डायमेंशन रहने वाला है, जैसे उसने दिया है वैसे ही आप लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ तक 35 था, उसके बाद यहाँ तक 70 था, उसके बाद ये आपका नेक्स्ट था। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, ये देखिए देख सकते हैं, ये टोटल यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ये यहाँ तक, है ना। एक्सटेंशन लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर क्या बनाना है, एरो बनाना है, जो भी आप बनाते हो। ये देखिए ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसको लाइन को ड्रॉ कर देंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये ड्रॉ कर देंगे। चलिए ये था 70, ये था 30 और ये था 35, याद रखेंगे, ऐसे करना है। साथ ही साथ इधर आ जाइए, ये भी बहुत सिंपल से रहने वाला है। अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये देखिए ये तो हो गया। अच्छा, टोटल अगर हाइट ये इसकी बात करें तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ तक है आपका 15, है ना, ये भी 15,
ये देखिए है ना, इसको भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, 15 15 दोनों हो चुका है। अब आगे क्या होगा, ये इसका काम हो चुका। ये वाला जो है इसको आपको दिखाना है। ये देखिए ये छूटा है, तो इसको आप यहाँ से दिखा सकते हैं। ये और ये लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 20, और ये टोटल आपको अगर लिखना हो तो आप लिख देना ऐसे 60 करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। और ये बीच का जो पोर्शन है इसको भी आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसको यहाँ कर दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए। ये था आपका 10, ठीक है, ये हो गया। यहाँ की बात है तो यहाँ पर भी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब सेक्शन की बारी है, तो सेक्शन इसका कैसे करेंगे। सेक्शनल फ्रंट भी बोला है, यहाँ से ऐसे रखेंगे देखिए, और काटते जाएंगे। तो पहले तो ये खोखला है, ये तो कटेगा नहीं। जो मैंने लिया लूंगा कितना, पहला नंबर ये देखिए हाफ, यहाँ से यहाँ 15 आपको नहीं काटना, ये नहीं कटेगा। उसके बाद जो है अब देखिए ये नीचे जाएंगे और इसको काटेंगे, तो पूरा यहाँ तक कटेगा। ये भी है, ये भी कटेगा, और यहाँ तक कटेगा पूरा, यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक कटेगा। तो इतना तो काटना है आपको, फिर खाली दिख रहा है आपको। चलिए तो देखिए कहाँ से काटोगे। पैर आपको लेना है 45 डिग्री एंगल, सॉरी ये छूटेगा, यहाँ से चालू होगा। तो ये आपका ऐसे आपको काटते जाना है। एक सेकंड, ये देखिए ऐसे, ये वाला जो है आपको इधर, क्योंकि दिखाना जरूरी है, ये सेंटर लाइन बनेगा, ये ऐसे यहीं तक कटेगा, है ना, हाफ सर्कल है। इसके बाद नहीं कटेगा, तो ये छोड़ दो, इधर को भी छोड़ दो। तो इस तरीके से ये आपका जो है डायग्राम कंप्लीट होता है। और यदि अभी भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं बताने में। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये था अलग, ये था कितना 15, ये भी कितना था 15, ठीक है। और ये जो नीचे था टोटल था 65, यहाँ से यहाँ इसको छोड़ के, है ना, तो इसको भी आप 15 मान लो। ये भी आपका था 15, ये देखिए बीच का जो भी है वो दिखा देना। ये आपको अगर दिखाना है, ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा नहीं पाया हूँ इसको, ये तो दिखा दिया यहाँ पर। तो चलिए अब ये ओके होने वाला है। सो अभी भी अच्छा, फ्रंट में आपका डायमेंशन बाकी है। क्या कर लेंगे आप, बड़ा सा डायमेंशन दे देंगे कोई भी। तो एक काम करो, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से भी कर लो। तो मैंने दे दिया 35। तो एक काम करेंगे, ये डायमेंशन को पीछे खींच लेंगे पतला सा, और यहाँ पर दे देंगे 50 mm, है ना, टोटल 50 था, या यहाँ पर 50 मार्क कर लेंगे आप। बाकी तो जैसा है वैसी है। और ये आपका कितना था, ये वाला 20 मैंने दे दिया यहाँ पर, तो ज़्यादा फर्दर और डायमेंशन की जरूरत नहीं है। सो ये रहा आज का कन्वर्जन ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यूज इनटू वेरियस सेक्शनल व्यूज। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे पूछें।